सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम खान and I welcome all of you on my channel. Today our topic is software crisis and software engineering. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के मेन टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस है और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सीखेंगे। लेट्स सी टुडे लर्निंग आउटकम्स। बेटा, आज के जो लर्निंग हमारे आउटकम्स हैं वो 8 हैं। बेटा, आज का जो पहला लर्निंग आउटकम है वो है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सेकंड पे हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर। थर्ड पे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर फेल्यूर। फिर देखेंगे हम व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, कॉजेज़ ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। नंबर 6 पे देखेंगे सोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। नंबर 7 पे देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और लास्ट पे नंबर 8 पे हम देखेंगे कंक्लूजन। चलिए अब वन बाय वन तमाम लर्निंग आउटकम। फर्स्ट लर्निंग आउटकम, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। Software is a part of computer system that consists of data or computer instruction. In other words, we can say that software is a set of instruction, data, program used to operate computer and execute the specific task. हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम में है हिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर फेलियर एंड लॉसेस। Software failure occur when the user perceives that the software has ceased to deliver the expected result. Software failure causes losses to the organization. अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो 1996 में यूएस के सबसे बड़े एक बैंक ने 800 कस्टमर को गलती से $9,241 क्रेडिट्स कर दिए। बाद में पता लगा ये प्रोग्रामिंग बग था जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर में, जिसकी वजह से ये गलती हुई। इसी तरह 1996 में एरियन 5 स्पेस रॉकेट जो 10 साल में $7,000 मिलियन की कॉस्ट से बना, लेकिन अपने लॉन्च के चंद मिनट बाद ही वो क्रैश हो गया। द क्रैश अकर्ड बिकॉज देयर वाज ए सॉफ्टवेयर बग इन द रॉकेट गाइडेंस सिस्टम। नॉर्थ अमेरिका की हिस्ट्री में वन ऑफ द मेजर पावर सिस्टम फेल्यूर 2003 में देखा गया, जिसमें 100 पावर सिस्टम फेल हुए और 50 मिलियन कस्टमर ने इस प्रॉब्लम को फेस किया, जिससे 6 बिलियन रुपीज़ का लॉस हुआ। इट वॉज डिटर्मिन्ड दैट द मेजर रीजन बिहाइंड द फेल्यूर वाज अ सॉफ्टवेयर बग इन अ पावर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बग क्या है। Bug basically an error, fault or a flaw in any computer program. In other words, a bug produces unexpected result or caused a system to behave unexpectedly. Next learning outcome है हमारा the software crisis. There were many difficulty in the development of large software system during 1960 and 1970. The term software crisis dates from that time. The problem stemmed from inability to apply the technique used to build a small software system to the development of large and more complex system. The typical way to develop the small system can be described as a code and fix. In simple, we can say software crisis is a difficulty of writing useful and efficient computer program in the required time. Number 4 learning outcome is causes of software crisis. There are nearly 7 causes of software crisis. One is project running over budget. Second is project running over time. Third one is software very inefficient. Software was low quality. Number 5, software often did not meet requirement. Number 6, project were unmanageable and code difficult to maintain. And last one is software was never delivered. Major cause of software crisis is that the machines have become several order of magnitude more powerful. To put it quite bluntly, as long as there were no machines, programming was no problem at all. When we had a few weak computer, programming become a mild problem, and now we have a gigantic computer, programming has become equally a gigantic problem. आइए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को टाइम के लिहाज से ग्राफ में देखते हैं।
By the end of 1960, hardware costs had fallen exponentially and were continuing to do so, while the cost of software development was rising at a similar rate. आप देख सकते हैं कि हार्डवेयर की कॉस्ट 1948 से 1960 तक गिर रही है और 1948 से ऑनवर्ड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्रीज हो रही है। नंबर 5 पे हमारा लर्निंग आउटकम है सोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस का सोल्यूशन ओनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, आइए देखते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द application of engineering to development of software in a systematic method। दूसरे अल्फाज में the systematic application of scientific and technological knowledge, method and experience to do design, implementation, testing and documentation of software, we can say software engineering। ये कहना गलत ना होगा कि वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूजिंग टूल्स दैट हेल्प अस मैनेज दिस कम्प्लेक्सिटी। For the implementation of solution to the problem of software crashes, some prerequisites are there. One of them is knowledge of basic statistics and experimental design. सेकेंड पे हम देखते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। थर्ड पे एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ टीम नंबर ऑन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फॉर द प्रोजेक्ट्स विच आर डिलीवर्ड लेट must adopt the following methodology, and these are 3 numbers. First one is project planning and scheduling, number 2 is cost estimation, number 3 is risk management। Last learning outcome of this session is conclusion। आइए conclusion को देखते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि आपने पीछे सीखा है, we have discussed software crisis, its causes, the present status and the possible solution to this crisis। Software engineering appear to be one of the few options available to tackle software crisis। Software engineering is the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to development, operation and maintenance of software। दूसरे अल्फाजों में हम यूँ भी कह सकते हैं, इट इज़ बिलीव दैट ओनली सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन टू द प्रेजेंट सॉफ्टवेयर क्राइसिस कैन पॉसिबली कम फ्राम अ स्प्रेड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस अमंग द इंजीनियर्स कपल्ड विद फर्दर एडवांसमेंट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इटसेल्फ। यहाँ पर बेटा आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद है बेटा आप लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो लेक्चर की तो इसे काइंडली शेयर करें, लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेक्चर से रिलेटेड तमाम वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। अपना ढेर सारा बेटा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। आपका शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।